clear? आवाज नहीं आ रहा है सर आपका क्लियर। वही तो हम पूछ रहे हैं, जस्ट नेटवर्क चेंज करना होगा। তোমার নেট ওয়াইফাইটা অন করো। তোমার ওয়াইফাই hello. Okay, I share my screen. If screen is visible, then tell me. Screen is visible to everyone. Screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। About the program on shift by one, means any kind of 8-bit, 16-bit number you can shift it by 1 bit or 2 bit by some instruction are in 8085 microprocessor. So in this program, shifted 8-bit number left, shifted left in 8-bit number by 1 bit position, means the D7 bit go to D6 and D1 D1 bit go to D0. Okay. So first, what happened? First, starting of the program to flow chart is that. So this is the flow chart. Okay, and we all know about the instruction which is rotate left instruction. क्या पता है ना जी कौन सा इंस्ट्रक्शन लेफ्ट में रोटेट करता है एक्यूमुलेटर को? हेलो, Yes, sir. तो कौन सा इंस्ट्रक्शन बोलो? RAL. हाँ, रैल। ओके, तो रैल, तो यहाँ पर हम लोग रैल यूज करेंगे। तो लेकिन रैल किसके कौन सा डेटा को लेके काम करता है? एक्यूमुलेटर का डेटा को लेके। तो जो भी 8 बिट डेटा को हमको रोटेट मतलब ऑन बिट पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो पहले हमको इनिशियलाइजली क्या करना होगा? उस डेटा को एक्यूमुलेटर में लेना होगा। उसके बाद हम लोग रैल इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रैल इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। After execution of RAL instruction, the data will be shifted left by 1. Then we store the data by using STA instruction. STA store the accumulator content direct, means using STA. So ये गया मेरा simply एक simple program. तो first see the flow chart. Now start. Let's start and load accumulator with the operand from memory. Load accumulator with the operand from memory. Then
shift left accumulator. Then we use the shift the left of the accumulator content, then store the result from accumulator to memory. After that it will stop. Okay, so this is the simple flow chart of shifting 8-bit number by left by one position. तो अब इसका प्रोग्राम क्या होगा ये देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर LDA in case of LDA we can be used any MVI instruction also. LDA के जगह हम लोग, तो मेरा डेटा जो है ये है, मेरा डेटा है दैट लोकेशन मीन्स 3000 लोकेशन में मेरा जो डेटा है वो है 05, मतलब 05 को दिस इज 8-बिट नंबर, इस नंबर को मेरे को लेफ्ट में ऑन बिट शिफ्ट कराना है। So this is our input data. So now using LDA means load HL pair with data from 3000 hex. Load HL register pair from 3000 hex means load accumulator direct. Load accumulator direct means वो जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन मीन 30,000 मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। देन वी यूज द रैल इंस्ट्रक्शन फॉर शिफ्ट लेफ्ट ऑफ द एक्यूमुलेटर मींस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट में ऑन बिट शिफ्ट कराने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। देन आफ्टर दैट वी यूज STA फॉर स्टोर द रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन 3000 hex, memory location 3000 hex, and after that our program is completed. Then we use HLT instruction. Or halt the program or stop the execution. So everyone understood this program? Hello? Yes sir. Okay. So अगर दूसरा if we can say that you can shift left by 2-bit position means ये तो सिंपल 1 बिट हुआ है, तो हमको 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो तो? अगर 2 बिट को शिफ्ट कराना है तो क्या करेंगे? ये तो ऑन बिट शिफ्टेड इन लेफ्ट। अगर if we can shifted 2 bit in left, then what will be do here? क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर? सर एक और बार RAL को यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि एक बार करेंगे तो एट ए टाइम ऑन बिट होता है, तो सेकेंड टाइम तो इसमें क्या करेंगे बिफोर STA से पहले, मतलब इस जगह, इसके बाद और एक यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे 3000 जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट ये हो जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम इस रैल में क्या होगा ऑन बिट शिफ्ट होगा और नेक्स्ट रैल में और ऑन बिट होगा। द टोटल एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम द टोटल शिफ्टिंग द 8-bit नंबर input 05 is the input and output is the after shifting on bit the output will be 0A. Output will be 0A. अगर 2 बिट होगा तो क्या होता, वैल्यू क्या होता है एक बार बोलो तो? 05 अगर 2 बिट शिफ्ट कराते तो क्या वैल्यू क्या कितना आता? 05 को अगर 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कराते थे हम लोग तो क्या होता, वैल्यू क्या होता? ऑन बिट में तो 0
0A आया है तो 2 बिट में क्या होता है? कर रहे हो ना, क्या नहीं कर रहे हो? कॉपी जीरो किया ई पास सर, में? हाँ बोलो। जीरो ई। 0E। जीरो ई और 0F कौन सा होगा? देखो 0 0 0 और A मतलब ऑन जीरो, तब क्या हो रहा है तुम्हारा? जीरो के अगेंस्ट क्या हो रहा है? देखो क्या एक्चुअली इसका बीट का पैटर्न क्या आ रहा है? 0 0 0 और उसके बाद ऑन जीरो। ये मतलब ऑन जीरो ना? हेलो। Yes, sir. यस सर। तो इसका अगर ऑन बीट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा लेफ्ट में? तो 1 तो होगा मेरा 0 0 0 1 0 1 0 0। 0। कितना आया है? कितना आया? यस सर, जीरो ई ही आ रहा है सर। कैसे 0E आ रहा वो है? तो 4 का है ना सर, हाँ 1 4 कैसे होगा जीरो? ना, हाँ बोलो। 1 4। हाँ ऑन फोर हेक्स होगा। यस सर। अच्छा जी, 0E कैसे आ रहा है हमको एक बार बताओ तो, तुम मतलब कैसे कैलकुलेट करके 0E बोल रहे हो तुम? हेलो। देखो ये जो हमने जो जिसको मार्क करके रखे है, किया हुआ शो कर रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये जो मार्क है ये है मेरा 4, और ये जो अभी अभी जो इसको मार्क किया ये कितना है? 1। तो कितना आ रहा है? 14। 1 4 ये है मेरा 1 आया और ये मेरा 4 आया तो 14। तो एज सिमिलरली दूसरा बात है, जो अगर ये तो लेफ्ट में बोले हैं, राइट में करते थे हम लोग, तो अगर राइट में करते थे तो क्या होता? जस्ट सब कुछ सेम रहता, सिर्फ यहाँ पर रैल के जगह रेयर हो जाता। रैल के जगह अगर राइट ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू शिफ्ट ए 8 बिट नंबर राइट बाय 1 bit, तब just only on read instruction we used here, and it says that to it shift the 2 bit right, okay, 8 sorry, shift 8 bit number by 2 bit position। तो तब क्या, तब 2 बार मेरे को रेड इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता है, बाकी प्रोग्राम सेम ही रहेगा। ठीक है। तो इसमें तो शायद किसी का कोई डाउट नहीं है। नो सर। अभी हम स्क्रीन चेंज किए, शो कर रहे हैं आप लोगों को जो मार्क्स द लोअर लेवल ऑफ द 8 बिट नंबर। नो सर। जस्ट वन सेकंड। अभी शो कर रहे हैं ना मार्क्स द लोअर लेवल ऑफ एन 8 बिट नंबर। हेलो। यस सर, यस सर। और दूसरा बात है, ये टीचमेंट में जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना नेटवर्क रिगार्डिंग इशू?
में नेट आपका कम यूज होगा। जब आप लोग इसको ऑनलाइन जब हम क्लास ये करेंगे तब आप लोग सेटिंग में जाके लो क्वालिटी मोड को एक्टिव कर दीजिएगा, तो आपका मैक्सिमम 50 MB से 100 MB के अंदर आपका एक क्लास खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं तो लैपटॉप में लेते हूँ तब भी मेरा उतना नहीं लगता, 100 MB 150 MB में मेरा क्लास खत्म हो जाता है, एक घंटा का क्लास। और आप लोग को तो और भी कम लगेगा क्योंकि हम स्क्रीन शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मेरे साइड से ज्यादा। ठीक है, तो अभी जो है मार्क्स द लोअर लेवल ऑफ एन 8-bit नंबर, मतलब मार्क्स करना है, मतलब डिसेबल, मार्क्स मतलब डिसेबल और अनमार्क्स मतलब एनेबल। मार्क्स द लोअर लेवल ऑफ एन 8-bit, क्योंकि नेबल क्या है एक्चुअली, ग्रुप ऑफ 4-bit इज कॉल्ड नेबल, group of 4-bit is called nibble. Okay, so as same it is will be same to load the any kind of data जिसको हमको marks करना है lower 4-bit any 8-bit data, then perform a AND operation of F0, क्योंकि F0 0 के साथ, क्योंकि AND ऑपरेशन करेंगे तो AND में क्या होता है, जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। मतलब अगर 0 रहेगा तो 0, अगर 1 रहेगा तो 1 ही होगा। तो अगर एंड में क्या होता है, एंड में इन जनरल एंड में क्या ऑपरेशन होता है, समेशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एंड ऑपरेशन। डिजिटल में जो एंड ऑपरेशन है एंड और तो इसमें एंड ऑपरेशन में क्या होता है, हेलो सर अगर 1 के साथ करेंगे तो 1 ही होगा। हाँ, अगर 0 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा, तो अगर 0 0 1 भी करेंगे, 0 1 के साथ भी करेंगे तो वो भी 0 ही होगा। मतलब ये क्या है, दोनों इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं आउटपुट। क्या, हेलो, मतलब दोनों इनपुट सेम होगा तभी मेरा आउटपुट क्या आएगा, क्या होगा, ट्रूथ टेबल भूल गए क्या? 1 होगा सर। हाँ ना, जब 0 0 होगा तब भी क्या 1 होगा, तब 0 होगा। तब सिर्फ जब 1 1 होता है तभी मेरा 1 होता है, बाकी 1 0 कॉम्बिनेशन भी और 0 1 में भी और 0 0 में भी 0 ही आएगा। तो लोअर जो बीट है, लोअर लेवल जो है उसको मार्क्स करने के लिए हम लोगों को F0, अगर हायर बोलेंगे, हायर ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, तब 0F होगा। अगर दोनों को ही बोलेंगे तब एंड में एंड इंस्ट्रक्शन यूज करके हमको 0 0 एक्यूमुलेटर में लोड करना है। ओके, तो नाउ एज अ सेम प्रोग्राम, तो यहाँ पर हम फिर से भी बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग LDA के जगह हम लोग MVI A, जो डेटा है उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है मेरा 45 है, यहाँ पर जो डेटा लिए है वो 45, तो हम लोग MVI इंस्ट्रक्शन यूज करके भी उस 45 को एक्यूमुलेटर में ले सकते हैं, क्योंकि MVI A, 45x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर LDA मतलब लोड एक्यूमुलेटर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर, मतलब इस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली लोड हो जाएगा यूजिंग LDA इंस्ट्रक्शन। मींस दैट after the execution of LDA instruction, the accumulator content or accumulator value will be 0, और जो है मतलब ये in this case is 45. Now we are logically and with immediate with F0 or with the rest, क्योंकि ANI we use the instruction ANI and immediate F0 x with register A। रजिस्टर A का जो कंटेंट है उसके साथ इमीडिएटली एंड ऑपरेशन करना है मेरे को, और मेरा जो वैल्यू है वो है F0। तो अगर F0 करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर दिखा रहा है, एक सेकेंड, जस्ट यहाँ पर जस्ट एक, तो पहला जो वैल्यू था 45 था, एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या था, क्योंकि मेरा इनपुट है 45,
तो आपको लोअर निबल को मार्क्स करना है। तो हमका मेरा इनपुट है 45, सो 45 को अगर बाइनरी पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर ही लिख रहे हैं, ठीक है, 45x एंड लोअर इज द F0। 45 को अगर बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 1 0 0, अगर 5 को करेंगे तो 1 0 1 0 1, एंड F को करेंगे तो क्या होगा 1 1 1 1, एंड 0 इज 0 0 0। सो अगर लॉजिकली अगर एंड ऑपरेशन होगा तो इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा, तो आउटपुट क्या होगा मेरा, देखो एक होगा 0 1 0 0, दिस वैल्यू इज 0 0 0। तो फाइनल वैल्यू क्या आया मेरा, दिस वैल्यू इज 40, क्योंकि इनिशियली मेरा वैल्यू जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू था 45 था। हमको क्या बोला है कि लोअर जो 4 बिट है, मतलब लोअर निबल को मार्क्स करना है, मार्क्स द लोअर निबल। तो लोअर निबल मींस ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल, एंड लोअर निबल इज दैट दिस पार्ट इज द और लोअर निबल, दिस पार्ट इज द और लोअर निबल। तो इसको लोअर निबल को ये करने के लिए हम लोग क्या, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ANI is the and immediate, and this is 2 byte instruction, and immediate with F0। अगर हायर निबल बोलता तो क्या करते हम लोग, इसको जस्ट चेंज कर देते, मतलब 0 F लेते। अगर हायर निबल बोलते तो हम लोग 0 F करते, 0 करेंगे तो क्या होगा, इसका साइड में F आ जाएगा, तब क्या होता मेरा वैल्यू, अगर इसी इक्वेशन में ये होता तो 0 F, तो इसमें क्या होता 0 0 0 एंड दिस इज 1 1 1 1। तो आउटपुट क्या होता मेरा, दिस इज 0 0 0 0 एंड दिस इज 0 1 0 1, दिस इज क्या है 0 5। तो हायर निबल लोअर निबल कोई भी हम लोग मार्क्स कर सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक। Now the another program is now screen changes, transfer a block of n byte from source to destination। transfer block of n byte, हाँ बोलो, transfer block of n bytes from source to destination, source to destination मतलब नंबर ऑफ बाइट्स, मतलब n बाइट्स को हमको सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे ये देखना है। तो सेम यहाँ पर फ्लो चार्ट क्या है, स्टार्ट इनिशियलाइज द काउंटर C, क्योंकि काउंटर C क्यों लेंगे यहाँ पर, क्योंकि काउंटर C विल बी आइडेंटिफाई द हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लॉक और बाइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू destination। So the C value will be depends on the number of bytes is transferred from source to destination। Okay, so start initialize the counter C to number of bytes, मतलब how many bytes is transferred from source to destination, then initialize the HL register pair to source memory location। मतलब
HL रजिस्टर पेयर को इनिशियलाइज किया है टू इंडिकेटिंग और फॉर सोर्स मेमोरी लोकेशन. आफ्टर दैट again initialize the another register pair which is DE register pair for destination memory location, for pair to destination memory location. तो एक HL register pair will be identity मतलब indicates that the source memory location जहां से मेरे को डेटा बाइट्स को ट्रांसफर करना है उस लोकेशन को करेगा, और जहां ट्रांसफर करेगा जहां ट्रांसफर करेगा उसको हम लोग DE रजिस्टर पेयर से इनिशियलाइज किए हैं. नाउ the moves the byte from सोर्स टू एक्यूमुलेटर. तो पहले क्या करेंगे, सोर्स से एक्यूमुलेटर में लेंगे, क्योंकि जो कोई भी ऑपरेशन होगा थ्रू एक्यूमुलेटर में थ्रू को होता है. तो फर्स्ट क्या करेंगे, मूव द बाइट्स फ्रॉम सोर्स टू एक्यूमुलेटर. आफ्टर दैट बाइट्स मतलब सोर्स से एक्यूमुलेटर में लेने के बाद हमको क्या करना है, उस डेटा को डेस्टिनेशन में लेके जाना है. देन अगेन वी मूव द बाइट फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू destination. Move the byte from accumulator to destination. So move the byte from source to accumulator कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग using move instruction mov a, m. और दूसरा बात है, जब accumulator से मेमोरी में कैसे करेंगे और destination में move m, a and then increment the HL रजिस्टर पेयर. क्योंकि HL रजिस्टर पेयर को क्यों इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो बाइट है उसको इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि उसको हमको फिर नेक्स्ट बाइट को हमको ट्रांसफर करना है. एंड पैरेलली इज दैट नेक्स्ट स्टेप इज दैट इंक्रीमेंट द डेस्टिनेशन पॉइंटर डी पेयर आल्सो भी, डी रजिस्टर पेयर आल्सो भी इंक्रीज. ओके, नाउ डिक्रीमेंट काउंटर. अगर एक डेटा बाइट ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगा तो इनिशियली अगर मान के चलो इनिशियली द वैल्यू इज दैट C register is 05, then C register value is 05, then after the execution of this instruction the C is decremented by 1. So after that one operation the C value will be 04. ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक काउंटर मतलब C का वैल्यू 0 नहीं होगा, until the C value is not 0. So is the counter is 0. अगर काउंटर 0 ये चेक करेगा, अगर काउंटर 0 नहीं होगा तो ये बैक टू द अगेन मूव द बाइट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मूव द बाइट फ्रॉम सोर्स टू एक्यूमुलेटर, एंड अगेन द फॉलो द स्टेप बाय स्टेप until the counter value means C register value is 0. If yes then stop the program. मतलब अगर yes होगा मतलब 0 हो जाएगा, तब मतलब मेरा जो बाइट ऑफ ट्रांसफर करना था सोर्स से डेस्टिनेशन में वो 0 हो गया, मतलब और कोई भी बाइट नहीं है. और लेफ्ट you see here initially we loaded the counter value 05 क्योंकि we transferred the bytes, 5 number of bytes transferred from source to destination, 5 number of bytes transfer for source to destination. So then we LXI H initialize the HL register pair, then LXI DE, then move M, A, then stack STAD means store the byte from accumulator to destination. Then INX H. And another new instruction which is STAX means store the byte from accumulator to destination, or the DE register pair or the DE register pair. Store the byte from accumulator to DE register pair. Store the byte from accumulator to DE register pair. After that, the HL is increment. Okay, just 1 minute hold. Okay, I come back within 1 or 2 minutes.
Okay, after that STAX D means store the byte from accumulator to DE register pair. In this case, is that this is the DE is our destination register pair or destination address. After that, we use the INX H means increment register pair, H register pair to point the source. So next source means next the byte is to be fetched or transferred, and next again we INX D means increment the destination pointer DE register pair. Also we increment the DE register pair by 1, and after that DCR means DCRC means decrement the counter, because we counter matlab in this case the counter is number of 5 means 5 number of data bytes or bytes are transferred from source to destination, and after that JNZ means jump if address 2008 means that address, because again repeat the same procedure until the counter is not 0. If the counter is not 0, you can back to the step. This step means move a comma m means 2 byte, another byte is transferred from source. Okay, and in this case move a comma m is that move the byte from source to accumulator. Okay, source to accumulator. So it is clear to everyone, and after that if yes then it will be halt. If yes then it will be halt. So this is our before execution the bytes of data is, this is our initialize of HL register pair starting address is 3000 hex and data will be 05, 02, 04, 03 and 02, and our destination, this is our before execution value is that, and this, and after execution the value is this means 3500 is our destination address and 300 our source address. So everyone understood the program? Hello? Is there any doubt? Hello? Yes, sir. Hello? Is there any question? Hello? हेलो हाँ बोलो. हेलो. सर समझ आ रही है. थोड़ा आवाज ऊंचा करके बोलो ना, हमको सुनने ठीक नहीं दे रहा है. सर क्लियर है. ओके, तो आज यही तक ही एंड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास सैटरडे क्लास लेंगे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे. ठीक है, 9:30 से और 10 से. ठीक है, और पढ़ रहे हो ना, नोट फॉलो अप कर रहे हो ना. अभी तक हम मटेरियल जो 8051 का मटेरियल अपलोड नहीं किए हैं, हम कर देंगे इस वीक में, मतलब संडे के अंदर हम सारे कुछ मटेरियल फिर से अपलोड कर देंगे. और ऑलरेडी हमने बहुत सारा मटेरियल अपलोड किए हैं, थोड़ा उसको देखो.
और हम इस वीक में असाइनमेंट भी देंगे। उस असाइनमेंट को ऑन मंथ टाइम देंगे, उस ऑन मंथ टाइम के अंदर सबको सबमिट करना है। ओके, एंड फॉर टुडे